Morning students, I am Shipra Banerjee and again I am bringing you a new chapter for explanation, that is chapter number 9, separation of substances. What is separation? अलग करना, separate करना चीज़ों को. जब भी चाय बनती है किचन में, आपने देखा होगा your mother used to strain the tea and remove the tea leaves from the tea, right? Another example is the removal of stones and husk from the pulses or the rice before cooking them. तो what is the need of these separations? हम separate क्यों करते हैं? आप जूस बनाते हो, for example lime water, you want to drink lime water, but the seeds of the lemon are there in the lime water, then you would not like to drink that lime water, right? So the separation of substances have many importance in our life, have many important functions in our life. Before we go further, we need to know what are the types of substances. In our daily life, there are two types of substances which we used to see in our daily life. They are either the mixtures or the pure substances. या तो mixture होते हैं या फिर pure substances होते हैं. Mixtures are also known as impure substances. Mixtures को impure substances भी बोला जाता है. तो impure substances, how we will identify that it is a impure substance or a mixture or a pure substance? By identifying the texture, by looking at the composition of the mixture or the substance. The substances, how we are going to define mixture? The substances having two or more kind of different substances are known as mixtures. Like we are mixing sugar with water, right? So it is a kind of a mixture. It is kind of a mixture in which we are mixing two different substances, right? The pure substances are those which are having throughout one type of atoms or molecule. एक ही तरह के atoms और molecules से मिलकर बने हैं, एक ही रेशियो है उनका, एक ही तरह से वो दिखते हैं, पूरा यूनिफॉर्म है, वो सारे substances pure substances होते हैं. So in nature, elements and compounds are only the pure substances. हमारे नेचर में सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस कहने के लिए दो ही हैं, एलिमेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स. एलिमेंट्स जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, आर नोन एज एलिमेंट्स. लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, दीज आर द एलिमेंट्स. एंड द कंपाउंड्स विच आर composed of two or more kinds of atom in a fixed ratio. इनका ratio fixed होता है. Compounds, whenever you are going to define compounds, there should be fixed ratio must be added in your definition. Definition में fixed ratio ज़रूर लिखना है, क्योंकि mixing तो हो रही है, दो या दो से ज़्यादा तरह के atoms मिल तो रहे हैं, but they are in a fixed ratio. Like water, the formula of water is H2O. Means wherever you will see water, it has H2O composition, two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen mixes together to make water, which is a compound. Salt, NaCl, Na and Cl, one molecule of Na and one molecule of Cl forms a salt, common salt, NaCl. So it has a fixed composition throughout. एवरीवेयर, वेयर एवर यू कैन सी वाटर, एक ही फॉर्मूला मिलेगा. यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन आर द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स आर वाटर, सॉल्ट, देर आर मैनी अदर्स, शुगर, दीज आर कंपाउंड्स. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, these all are compounds. Okay, so these are the pure substances, only pure substances found in our nature, that is element and compound. Another part is mixtures or the impure substances which have two or more kinds of different substances. दो या दो से ज़्यादा तरह की चीज़ों को जब हमने मिला दिया, then it will form a mixture. And mixtures or impure substances can be of two types. दो तरह के हो सकते हैं. They may be homogeneous substances, homogeneous mixtures, or may be heterogeneous mixtures, right? Homogeneous mixtures are those which have uniform composition throughout. They are mixtures but they have uniform composition throughout. हमें वो हम अलग नहीं कर पाएंगे. They are the mixture which we can not be able to differentiate by our eyes, right? Like if we are mixing sugar
into water or salt into water, can you identify where is sugar and where is salt? Where is sugar and where is water? Where is salt and where is water in the mixture? So they are mixed, they have been mixed so nicely, so finely that we are not able to identify them. So this type of mixture is known as homogeneous mixture. Heterogeneous mixtures are those which do not have or lacking the uniform composition. ऐसे mixtures जिनमें की uniform composition नहीं होती है, those which are not having uniform composition are known as heterogeneous mixtures. Like we are mixing chalk powder and water. chalk का powder बनाया, उसको water में हमने mix कर दिया, तो we will after some time we will be able to see the different layers of chalk and water. chalk अलग दिखेगी थोड़ी देर बाद और water अलग दिखेगी. sand and water, sand को मिला दिया, थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, sand की अलग layer बन गई है, water की अलग layer बन गई है. So these are the types of heterogeneous mixture. mixtures तो ये भी हैं, but they are heterogeneous, in which the uniform composition is lacking, and the homogeneous mixtures are those in which the composition is uniform throughout. We are not able to identify by the eyes. Okay, so this is the types of substances we can see in our daily life. जो types of substances हम देखते हैं अपने daily life में, these are the two types. Now what will be the properties? Now the properties of mixtures, right? It is also given in your book, the properties of mixtures, how we can differentiate mixtures from the pure substances. The mixtures are made up of components or constituents जिससे बना हुआ है मिक्सचर. लाइक मैंने अभी सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल दिया, तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, सॉल्ट एंड वाटर. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. हर एक हमारे डेली लाइफ में, इन आवर डेली लाइफ वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर. मिल्क इज़ अ मिक्सचर, ऑयल इज़ अ मिक्सचर, flour is the mixture, wheat flour is the mixture, everything around us is mixture. Air is a mixture of gases, right? So the components of a mixture can be separated by physical methods. So if we are going to separate, अभी हम पढ़ेंगे आगे the techniques by which we can be able to separate the mixture. So they can be separated by physical methods. We can separate easily by evaporation, or by simply hand picking, or simply by threshing or winnowing. There are the methods given in your books. We'll read it in my later video. And the first property of mixture is components or constituents of the matter can be separated by physical means. Another second property of a mixture is components are not present in a fixed ratio. We are not weighing the components of mixture before mixing. हम उसको वे करके या उसको मॉलिक्यूल्स गिन के काउंट करके नहीं डालते हैं मिक्सचर जब बनाते हैं. कुछ भी एट रैंडम हमने अमाउंट ले लिया और उसको मिक्स कर दिया, तो वो मिक्सचर बन जाता है. ईच कंपोनेंट रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टी. अगर हम शुगर और सॉल्ट, शुगर एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर एंड वाटर, तो शुगर विल रिमेन शुगर. वो चेंज नहीं हो जाएगा कि शुगर कुछ और बना ले रहा है वाटर के साथ मिलके. लाइक एंड वाटर विल रिमेन वाटर, वो भी H2O ही रहेगा, वाटर ही रहेगा. लेकिन क्या हो गया, उनका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, दोनों डिजॉल्व हो गए आपस में, राइट. सो इट इज़, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. How we can identify a pure substance? What are the main properties? Components cannot be separated into two or more substances by physical means. हम जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से. प्योर सब्सटेंसेस लाइक कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते. उसके कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक हमने फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वाटर. इट इज़ मेड अप ऑफ H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है. तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं कि वाटर लिया और उसमें से हाइड्रोजन को अलग निकाल दिया और वाटर को. उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करेंगे हम. फिजिकल मेथड से हम नहीं उसको अलग कर सकते. बाय हैंड पिक करके या इवेपोरेशन करके हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन थ्रू आउट। ये तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि जब भी आप कंपाउंड की डेफिनेशन लिखेंगे तो फिक्स रेशो डेफिनेट प्रोपोर्शन यू हैव टू ऐड, क्योंकि H2O में H का 2 मॉलिक्यूल और O का 1 मॉलिक्यूल ही मिलेगा। NaCl में Na का 1 मॉलिक्यूल और क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल ही मिलेगा, उससे अलग हमको नहीं मिलेगा। तो कंपोजिशन के हिसाब से बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस, ये मैंने भी आपको बताया। दे आर मेड अप ऑफ, दे आर फॉर्म बाय एडिंग 2 और मोर एलिमेंट्स। एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं तो कंपाउंड्स बन जाते हैं, राइट। सो द कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सिमिलरली हम एग्जाम्पल फिर से वाटर का ही लेते हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। H2 इज अ गैस, हाइड्रोजन एक गैस होती है, ऑक्सीजन इज अ गैस, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है। लेकिन जो वाटर बनती है दैट इज लिक्विड, राइट। द प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला होता है। हाइड्रोजन इज़ अ वेरी इनफ्लेमेबल गैस, बहुत जल जाने वाली, बहुत जल्दी से जल जाती है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, हेल्प करती है बर्न करने में। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग कैन नॉट बी पॉसिबल। बट ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाला वाटर इज एन फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने का काम करता है। सो प्रॉपर्टीज आर बिट डिफरेंट, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, राइट। नेक्स्ट इज नीड ऑफ सेपरेशन। दिस इज़ द लास्ट पार्ट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही पढ़ाऊंगी मैं कि नीड ऑफ सेपरेशन क्या है, हम क्यों सेपरेट करते हैं। ये तो हो गया हमारे, हमने अभी पढ़ा टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस कि अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। हम सेपरेट क्यों करते हैं। पहले तो सेपरेशन, व्हाट इज सेपरेशन? द रिमूवल ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स of a mixture. Basically the mixtures are to be separated. We need not to separate compounds, we need to separate mixtures. Mixtures can be separated by their components. components को अलग अलग करना, mixture में भी component होते हैं तो उनको अलग अलग करना ही separation कहलाता है। अब ज़रूरत क्या पड़ती है हमको, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि चाय को पीने से पहले हम उसको चाय की पत्ती को अलग करते हैं, उससे we used to strain out the tea leaves. तो वाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेशन, क्यों ज़रूरत है सेपरेशन की? सेपरेशन की ज़रूरत है टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज। वी कैन नॉट इन्जॉय आवर टी विद अलॉन्ग विद द टी लीव्स। टी लीव्स के साथ हम चाय को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ अ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। कैसा है वो? अनडिज़ायरेबल, ऐसा सब्सटेंस जो हमें नहीं चाहिए। तो उसको रिमूव करने के लिए वी यूज़ टू सेपरेट द थिंग्स टू गेट डिज़ायरेबल सब्सटेंसेज, राइट। अब मिल्क है, मिल्क का जो दूध होता है, दूध के ऊपर मलाई जमती है, मलाई को हम सेपरेट कर देते हैं और उससे क्या बनता है? घी बनता है। तो एक डिज़ायरेबल चीज़ है, उसको ऐसे ही यूजलेसली फेंक देना या उसको यूजलेसली ख़राब कर देना, तोड़ देना, क्या होता है उससे? हम वी विल नॉट गेट द डिज़ायरेबल थिंग एंड द घी इज़ द डिज़ायरेबल थिंग, द बटर इज़ द डिज़ायरेबल थिंग विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट मिल्क। दूध भी मिल रहा है, साथ के साथ हमको बटर भी मिल रहा है, राइट। तो दैट इज़ अ डिज़ायरेबल थिंग। टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, प्योरिटी, प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए, साफ चीज़ को हम इन आवर होम्स वी हैव, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, पल्सेस की बात करते हैं। दालों को जब हम बनाते हैं उससे पहले बिफोर कुकिंग वी यूज़ टू क्लीन द pulses. Suppose if we are not cleaning these pulses and we have cooked them, what will happen? The stones and the debris, the husk particles, dust, ये सारी चीज़ें उसके साथ ही कुक हो जाएंगी और जब हम उसको खाने बैठेंगे what will happen? It will not taste good, right? हमें अच्छा ही नहीं लगेगा, we will get ill, बीमार भी हो सकते हैं अगर गंदी चीज़ें खाएंगे, राइट। सो प्योर चीज़ों को अलग करने के लिए हमको सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ सेपरेशन। कल हम सेपरेशंस के मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेपरेशन होता मिक्सचर्स के लिए ही है बेसिकली। वी यूज़ द मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। Today I hope you have understood about the concept, what are mixtures, what are pure substances, what are the properties of mixtures, what are the properties of pure substances, and what is the need of the separation. Okay, that's all for today class. Thank you.
Thanks for listening.